तो इधर से लेके इधर और यहाँ पर करेंगे लैंडिंग। ये सर पोनीगोंग में भी होने से होगा सर। हाँ, ये तो बन चुका, मैंने लगाऊंगा। यदि इसको आप शिफ्ट कर दिए यहाँ पर तो भी ठीक है, समझे ना। तो मुझे चाहिए आपके इसके बीच में एक स्टेशन है ना, और इसके बीच में एक स्टेशन। ये आपका हाउलिंग कहाँ है? आइडिया वो अंजाव लास्ट है अंजाव। ये तो अंजाव में तो है, अंजाव में रखा है उधर ही है सर। अंजाव के हाउलिंग इधर, ये बहुत नजदीक हो जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। Our Honorable Minister, most respected, dynamic, our Mantri ji, Shri Kiran Rijiju ji, has explored that each and every aspects of the earth sciences can propagate to the each and every part of the country, which is the virgin area is still not tackled. And Arunachal Pradesh has a lot of the potentials of the natural resources, as well as there is a lot of the chances of transboundary earthquake happening in the 1950 Lohit earthquake, and also so many earthquakes coming from our transboundary China borders and the Bhutan and many places. So we have to well equip this land by most sophisticated equipment to detect and delineate the seismogenic fault. So for this, sir, we initially chosen the two stations going to be inaugurated by Honorable Minister on Bomdila and the Tapajio, and we have taken also the many good places which can have potentials to detect so many earthquakes, not to be missed, because this gives you idea that what is going to be built up in a state in near future. So that's why we proposed the many stations which are already shown in the map. You can see that another 4 stations we are going to install after these 2 stations, which is under the process of finalizing it. At the same time, once we detect the earthquake data, the processing and its data processing, data informations, its interpretations, and generate the output for the public use is most important. And for this, the seismological data repository for the Northeast India, the Itanagar, the center is found to be the one of the suitable places that can work for that. And for this, the National Center for Seismology and Earth Sciences is in the process of the review that how best we can do with in collaboration with the center. You know that lot of the geothermal resources studies is being carried out in collaboration. That there is a very comprehensive memorandum of understanding signed between the center, government of the Arunachal Pradesh, and the NGI, that in the Norway. It has opened a lot of the avenues for which the National Center for Seismology has capability to map the subsurface of the geothermal resource zone by mapping the shear zone, that what was its actually the actual depth, and then it was used by the other geophysical methods. And this all information from shallow to the deeper part of this entire Arunachal Pradesh gives a clear-cut imaging, just like a CT scan of the human anatomy. We have to do the CT scan, means computer-aided tomography, using the seismological data, magnetotelluric data, other geophysical tools to find out that what best we can able to give to the society with the environmental protections under this climate change scenario. So for this I am very happy, and I am deeply honored by so much respects and so much treated me in this land. Such a dynamic and very good aptitude has impressed me, that there is ample avenues to work together, and I am sure that we can have a very good memorandum of understanding with the NCS and Center of Earth Sciences and Himalaya Studies soon, and so that we can keep this study continuously to make the well-equipped earth scientific laboratory of this area, because this is a vast area which has not explored thoroughly till today. So a lot of the things have been done, and our secretary and honorable ministers has given the space that Northeast India may be the chances for exploring the things, so that public safety we can provide the solutions. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो ये बताऊं कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, अभी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं, वो बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर हैं, लेकिन शुरू से ही आपने ये दो बोमडीला और तापार्जियो का है, मंत्री जी जब इस मंत्रालय में नहीं थे तभी भी उन्होंने अथक प्रयास किया। यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, सेंटर ने पहले ही इस 2 स्टेशन को करने का किया।
और मंत्री जी केवल एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। और आने के बाद उन्होंने देखा कि जो स्टेट्स रिमोट लोकेटेड है, जहां पर बहुत से पॉसिबिलिटी है करने का, बहुत से इक्विपमेंट जो तंत्र जो है अभी तक नहीं हुआ है, उसको एक्सपेडाइट करना है। सब प्रोसेस में होता है क्योंकि कंट्री बहुत बड़ा है। तो रिजू जी का काफी मोटिवेशन है। हमारे सेक्रेटरी काफी डायनेमिक है, वो हर क्षेत्र में, हिमालय के हर क्षेत्र में, वो अभी लद्दाख भी घूमने गए थे इंस्पेक्शन में, तो हम लोग ये कर रहे हैं। मैं 2 दिन जो चारों ओर घूमा अरुणाचल प्रदेश में, मैं आपको सच बताऊं, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने रिसेप्टिव हैं, इतने सपोर्टिव हैं, इतने कोऑपरेटिव एंड पोलाइट है कि हमको लगता है कि ऐसा स्टेट यूनिक स्टेट। तो एक तो साइंटिफिक काम करने के लिए माहौल काफी अच्छा है, सो मच सपोर्ट्स है, बहुत अच्छा है। और जो भी आप जो मौसम विज्ञान के में है, मेरा एक और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो कर रहा है। हम आपको अपना नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी का जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बताया कि जो भूकंप की वेधशालाएं हैं, परमानेंट सेस्मिक ऑब्जर्वेटरीज है, वो काफी कम थी। इतना बड़ा स्टेट में काफी जो है लोकलाइज था, जिससे कि हम ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपको कहा जाता है कि अर्थक्वेक को जरूरी है कि उस जगह पर ही हो, अर्थक्वेक यदि बाहर होगा और कहीं भी हिट करेगा, सेकिंग कहाँ आया, तो उसका जान माल की क्षति हो सकती है। इसलिए हमारे मंत्रालय ने ये लिया है कि पूरा उसको इक्विप्ड कर दीजिए, जिससे कि छोटा भी अर्थक्वेक हो उसकी जानकारी हो, और इस जानकारी से पता लगाएंगे कौन फॉल्ट जो है सेस्मिकली एक्टिव हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रेस रिलीज ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रेस कम हो रहा है, जिससे कि मन स्थिति जैसे मनुष्य का होता है, आपका कहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया, कहाँ आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, जमीन का भी वही है। पृथ्वी जो है हर जगह पर उनका स्ट्रेस और स्ट्रेन लेवल चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग कि कहाँ पर ज्यादा हो रहा है। इसी की डिटेक्टेबिलिटी करने के लिए हमारा मंत्रालय ने जो आपका भूकंपीय तंत्र जो लगा रहा है, जो कि जिसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं, जैसे कार्डियोग्राफ होता है, इसमें ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसी तरह से हमारा सेस्मोग्राफ होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, अर्थ का होगा आपका सेस्मोग्राम। तो हम कभी कभी यही मेंशन करते हैं कि अर्थक्वेक इज नथिंग बट हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। जैसे आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एब्नॉर्मली हाई हो जाए तो मनुष्य का हार्ट अटैक होता है। इसी तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन लेवल जब असहनीय हो जाएगा, रॉक जब टूटेगा तो हार्ट अटैक होगा। और जैसे कि माइनर हार्ट अटैक होता है, मासिव हार्ट अटैक होता है, यहाँ भी माइक्रो अर्थक्वेक होता है, मासिव हार्ट अटैक होता है। तो उसी को डिटेक्ट करना है कि उसको मॉनिटर करते रहना कि प्रेशर लेवल कहाँ ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल कहाँ ज्यादा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो भी पूछा, अरुणाचल प्रदेश गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरी फॉर द अर्थ। सर, दापोरिजो और बंगला के अलावा और कहाँ में प्रोग्राम है सिस्मोग्राफी में आप इस मैप को देखेंगे, हम लोगों ने जो अभी प्लान किया है, आपका अंजाव में भी किया है, डिफरेंट क्षेत्र में 4 स्टेशन लगाने की हमारी और ये में बातें हैं, वो मैप में अच्छी तरह से दिया है, मेंचुआ है। और कुछ कुछ गैप एरिया है, उसको हम भरने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी अर्थक्वेक हमारे लिए कल्प्रिट है, उसको नेटवर्क के अंदर पड़ना है, जिसे हम लोकेट कर सके। नेटवर्क के बाहर जाएगा तो उसको लोकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम ये पूरी नेटवर्किंग का पूरा इसमें बढ़ा के इसमें एक किए हैं, जिससे कि सारा कुछ हो। जैसे कि आपको अब कहाँ कहाँ लगाने का है, देखिए, एक तो है सेपा, दूसरा है आपका मेंचुका, फिर जो है आपका अंजाव, एंड देन लोंगडिंग। दीज आर द एरिया। लेकिन बीच में हम तवांग के बीच से जब जाएंगे, वहां पर सुभानश्री अंडर, उस बीच में भी गैप है। ये हम रिकॉर्डिंग करके जब उसको उसका रिसर्च करेंगे तो और कहाँ कहाँ देना है, ये रुकेगा नहीं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसको डेंस करना है, क्योंकि ये पूरी एरिया को हमको इसको सेस्मोलॉजिकली इसको घेर के रखना है, जिससे कि हमको पता लग जाए कि कहीं से भूटान से अर्थक्वेक, चाइना से अर्थक्वेक, कहीं भी इसके से अर्थक्वेक आए, उसकी जो है रिकॉर्डिंग कर सके, इवन छोटा। और ये काफी केवल ये अर्थक्वेक की जानकारी नहीं देगा, उसी के इमेजिंग करके रिसोर्स का भी जानकारी देगा आपको कि लेवल में किस तरह का रॉक है, रॉक वीक है या रॉक स्ट्रांग है, रॉक में कुछ मटेरियल्स हेवी है, रॉक में कुछ मटेरियल कम है। तो इस तरह का हमारा प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, और हम लोग इसको अथक कर रहे हैं, करते आए हैं, और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि पूरा भारत सरकार में 10 वर्ष के अंदर जो भी सेस्मोलॉजिकल स्टेशन थे वो डबल हो गए हैं। पहले 114 स्टेशन थे, 213 तक, हमने उसको आज 157 तक कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस मुहिम में हम लोग काम कर रहे हैं, कि इतना बड़ा ए में हम उसको भूकंपीय रिस्क रेजिलियंट, भूकंप मैंने जो रोधी जो स्ट्रक्चर्स है उसको बनाने के लिए जानकारी चाहिए। हमारे अभी मैंने आपको बताया कि हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज से, और भारत सरकार जब कोई भी शुरू करता है प्रोग्राम तो उसके लोकल स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज को इन्वॉल्व करता है। हमारे लिए जो सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेज हिमालयन स्टडीज है, प्रोफेसर डॉक्टर तांगे साहब हैं,
और एनसीएस मिलके उस सारे इक्विपमेंट को हम पर ट्रेनिंग देंगे, ये क्या करता है, कैसे रिकॉर्ड करता है, क्योंकि जब तक आप इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे नहीं, इंटरेस्ट आपको आएगा नहीं। आपने देखा होगा आईएमडी ने काफी ट्रेंड कर दिया है और चारों ओर इक्विपमेंट लगा है, और ये ट्रेनिंग जो होगी जब इनके जो जूनियर्स आएंगे ये सिखाएंगे चारों स्टेट में। मैन पावर जनरेशन, जब टेक्नोलॉजी का उपयोग सदुपयोग होगा तो मैन पावर भी बढ़ेगा, और पूरी कंट्री में मैन पावर जो है हम उसको प्रोजेक्ट मोड में करते हैं। प्रोजेक्ट जो है कोई 1-2 वर्ष का होता नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है। तो काफी एवेन्यूज है कि इसको साइंस से जोड़ा जाए, यंग जनरेशन को, यंग माइंड को, और इसमें ये चलता रहेगा तो मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर होगा, स्किल्ड मैन पावर होगा, जो नए आएंगे वो और स्किल्ड होंगे और ट्रेंड होंगे, और अच्छे ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, जैसे कि एनसीएस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि कहाँ से ये होता है, देश में और कहीं विदेश में कैसे नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो हम अपने को अपडेट रखेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट लगाकर ही उसकी पूरी जो है उसका गवेषणा होगा, उसका पूरी जो है उसका तंत्र को काफी जो है हम उसको अवलोकन करेंगे, उसके पास रिवीजन करेंगे, उसके पास अपग्रेडेशन करेंगे, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस, और अच्छा की तरफ करने का यह है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया हमेशा बेस्ट टेक्नोलॉजी के, सुनामी अर्ली वार्निंग, हम पेसिफिक अर्ली वार्निंग के मेंबर होने के लिए काफी था, लेकिन हम लोगों ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंक्वायस्ट जो डेवलप किया हैदराबाद का, आप देखे होंगे, हमने आज तक फॉल्स अलार्म नहीं दिया। तो हमारी जो भारत सरकार की जो टेक्नोलॉजी का जो होता है, सब कुछ जांच पड़ताल करके हम रोबस्ट टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन का स्टडी चल रहा है, ये नहीं कि हमने रोका है, लेकिन साथ साथ में उसके लिए कवच भी बना रहे हैं, उसको अवरोधन भी बना रहे हैं कि अर्थक्वेक यदि हो जाए तो आदमी कैसे बचे। इसलिए हम उसको रिस्क रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ अलर्ट सिस्टम पैदा करेंगे। अभी हम अर्ली वार्निंग पर भी काम कर रहे हैं, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग पर, जैसे कि कोई चल रहा है ट्रेन, उससे कि आके ट्रेन रुक जाए, कहीं लिफ्ट रुक जाए, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन में खराबी ना हो, ये सारे के ऊपर जो है पूरा अध्ययन चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी इसके ऊपर काफी काम कर रहा है, कोलैबोरेशन में डिफरेंट ऐसे। तो हमको लगता है कि वी हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, वी हैव ए वेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड आई थिंक आप देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे लोगों में आए, बच्चों को उत्साह देखिए आप, टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं, बच्चे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं सारे, तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है, अच्छा सिग्नल है। यहाँ पर लर्नेड सेक्रेटरी साहब यहाँ आए हैं, ये एक अपने में एक आपको पहचान देता है कि एक सेक्रेटरी साहब की ये कितना है, हमारे सेक्रेटरी साहब हमें इतना दूर भेजें कि इसको जल्दी से आप देख के आओ और क्या क्या किया जा सके। तो काफी है कि देश को जो है काफी, और ये अरुणाचल प्रदेश के भौगोलिक दृश्य जो आपने पूछा, भौगोलिक देखिए, सेस्मो टेक्टोनिक्स देखिए, ये काफी अद्भुत है। क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में देखिए, क्लाइमेट चेंज में अब अर्थक्वेक का भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आइस मेल्ट करेगा तो छोटा छोटा अर्थक्वेक होगा, बड़ा अर्थक्वेक होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज। तो अभी एक प्रोसेस जो है अर्थ का दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड है, इसलिए कंबाइंड रिसर्च हो रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो रहा है। हमको लगता है कि आप ये इंस्टीट्यूट का पृथ्वी विज्ञान स्टडी और हिमालयन स्टडी का अध्ययन का केंद्र से पता लगेगा कि हम कितना अर्थ सिस्टम साइंस को भी स्टडी कर रहे हैं, और इसके इम्पैक्ट से जो आपका हिमालय में जो चेंजेज हो रहे हैं, क्योंकि हिमालय हमारा सबसे बड़ा जो है जियोलॉजिकली, सेस्मो टेक्निकली एक हमारे लिए काफी गौरव का विषय भी है, उसका अध्ययन अभी तक हुआ नहीं, उसका अध्ययन चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। भूकंप से बचने के लिए सबसे पहला कि पैनिक ना हो, पहला तरीका है कि पैनिक नहीं होना भूकंप है तो, उसमें बहुत ही काम एंड क्वाइट अपने को बचाना है, भागना नहीं है, कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है, और कहीं यदि आप घर में है तो घर के कॉर्नर में आप छुपे रहिए, अपने सर को, माथा को बचाना है, जहां चोट आपको न लगे। सबसे सेफेस्ट है कोई भी बिल्डिंग का कॉर्नर में आप छुपेंगे तो वहां सबसे कम जो है वहां पर जो है डैमेज होता है। दूसरा चीज ये है कि आपको जो भी दिया जाए सूचना, भारत सरकार के जो जैसे नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी समय समय पर अर्थक्वेक होता है तो उसकी सूचना देती है। अब आपको सूचना सब केंद्र पाएगा, आप लोग मीडिया वालों को मैं ऐड करूंगा, आपका भी नंबर ऐड करूंगा उस व्हाट्सएप पर, कि जहां भी अर्थक्वेक आए आपको खबर मिल जाए, और उस खबर को आप माने, प्रोपेगेंडा पर मत जाए, किसी पर जो है अविश्वास न करें। जो तंत्र जो सही है, जो भारत सरकार का जो जिसको जवाबदेही है, उसके बात पर विश्वास करें, साइंटिफिक बातों पर विश्वास करें, किसी प्रोपेगेंडा पर विश्वास न करें। और जो स्ट्रक्चर अर्थक्वेक के टाइम में क्रैक हो गए हैं, डैमेज हो गए, उससे बाहर रहने की ट्राई करें। लेकिन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आप लिफ्ट पर न चढ़ें, दौड़े नहीं, पैनिक न हो, आप जहां पर हैं काम एंड क्वाइट रहें। यदि आपके घर में कोई टेबल है, चेयर है, तो उसको अपने सर को वहां छूटने की ट्राई करें। जो हर क्षेत्र भूगोल जितने भी भूकंपीय जनित क्षेत्र हैं, जैसे कि जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, इंडिया है, यूएसए है, ये सारे जो है यही एहतियात बरतते हैं। और इस मामले में आप जानते हैं कि
काफी लोगों में अवेयरनेसेज आया है, मीडिया ने काफी इसके बारे में अवेयरनेसेज दिया है। अभी हमारा मीडिया तो काफी ही पारंगत है, जब भी कुछ भी होता है जान माल की क्षति के लिए या बचने के लिए जो भी हम लोग देते हैं संदेश उसको जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये साइंस इंटरफेस है सोसाइटी का, आप उसके भाग हैं, आपका भी जिम्मेवारी है कि हम जो कह रहे हैं पब्लिक तक पहुंचे। तो पैनिक नहीं होना है एकदम, अर्थक्वेक आने के बाद ये नहीं कि बहुत कुछ है, एकदम चीज को देखते हुए आपको सब काम करने हैं। और इसी बीच में अनुसंधान होते गए, आप नया बिल्डिंग बना रहे हैं तो नया बिल्डिंग डिजाइन कोड से घर बनाइए, ये नहीं कि आप जो है इसी तरह से घर बना लिए और आपके जनरेशन का केयर न रखें। तो ये सब चीज है जो कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्डिंग डिजाइन कोड जो है, गवर्नमेंट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है जो आपको देती है उसको फॉलो करना, गवर्नमेंट जैसे जैसे आपको रूल रेगुलेशन के अनुसार जो भी है उसको फॉलो करें, यही सब है। और हमको लगता है कि काफी अवेयरनेस पैदा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश के लोग काफी शिक्षित हैं और इस बात को काफी जानते हैं। मीडिया से काफी ये लोग जो है रूबरू रखते हैं। हम कभी डिस्कस कर रहे थे लोगों से, उनको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या ये कर रहे हैं, वो लोग भी साथ में चीज को ऐड करते थे। मुझे लगता था कि अवेयरनेस काफी नीचे हद तक गई। हमने तो मंडला तक गया और पूरा ये में देखा, हाँ वो काफी ऊंचाई तक उधर सब लोगों में एक उत्साह है, सब लोग खुश हैं, काम हो रहा है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको नया बिल्डिंग डिजाइन कोड चाहिए, वही तो हम लोग काम कर रहे हैं। जो कि आज जो इन्वेस्ट किए वो इन्वेस्टमेंट देर तक चले, रिकरेंस लॉसेज ना हो। प्रत्येक बार डिजास्टर में आपका प्रॉपर्टी भी जा रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर जा रहा है। तो साइंटिफिक डिजाइन पर, इंजीनियरिंग सोल्यूशन पर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इस रिसर्च के तहत, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आयाम जोड़ेगा और हमको लगता है कि काफी अच्छा होगा। थैंक यू सर। आपको एड बैनर या पोस्टर लगाना है तो भी कॉल करें क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट 0 को 8974070828 पे। नंबर फिर से नोट कीजिए 8974070828 और अपने हिसाब से डिजाइन करवा के बैनर लगवाएं।